ठीक है. So today we are starting with web development in Java. What are we starting with? Yes, guys. So web development in Java can be done by two technologies. One is servlet and one is JSP. So servlet is the iPhone 15 and JSP is Pro Max. So first, what do you think we should cover, servlet or JSP? And then gradually move on to the Pro Max one. ठीक है? So servlet is used to do web development in Java. Now how web development in Java happens? Okay, so now let's take a first real world scenario. Let's say there is a huge campus. Okay, let's even consider Azam campus only. So and they have many institutes. So for school they have one separate complex. For computer application they have separate. For dental, for law, okay, for any other courses commerce related, they have lots and lots of separate. So it's a vast network of buildings inside one large campus. And let's say this is the entrance of the campus. Now a person who has come to inquire, if he goes by himself he will be lost, yes or no? So if he tries to figure out himself which is the MCA building and where to get the form from and whom to contact, he will be lost. So to facilitate the easiness, what they have done is they have at the entrance they have kept a reception. What they have kept, and every building is numbered. Building B1, okay, building B2, building B3, B4, B5, like this. They have numbered all the buildings, and each building is running a separate course. So if you want to do the schooling part, you will go to here, building 1. If you want to do computer related graduation, so you will go in this building. Then computer related post graduation, you will go in another building. Allana is a different complex. PG, okay. So if someone come for LLB, okay, so for LLB they have a different building for law, and someone has come for dentist, okay, DDS, that is separate building. So they have set a reception over here. So whoever comes in the campus, so now this person wants to inquire for MCA. Okay, he wants to inquire about MCA course in Azam campus. So now first, where will he go? Where will he go first? The receptionist. And there he will tell what he has come for. So he will say MCA, right? So the receptionist has a map on how to route people. So the receptionist has been allotted a list of courses, right? So she will look in her list of courses, MCA, send it to building B3. Yes, no, maybe. So now when he says MCA, she will say, sir, you go to building B3. All the PG in MCA is over here. So he will come here, correct? If on his own he tries to figure out, he has to roam a lot in the campus and he might not land up in the correct building also. Yes or no? If you have gone to some other institute, then we are wondering which building to go to, correct?
Am I understood about, is this example clear? So what happens is, in web development we have a client side. What we have? So client side of the application is made in which language? Yes, Aman? JavaScript. Okay. So let's say you made an application and you are doing simple arithmetic calculation. Okay. So you take two numbers and you add those two numbers, right? So you will say I want to add the numbers. You will click on add. So this will just, guys, 1 second, someone at the door. अब ये टास्क करना है सिंपल कि दो नंबर लेना है 10 और 20, और जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट शुड वी गेट? द सम ऑफ 10 and 20, करेक्ट? बट ये चूँकि से फ्रंट एंड लैंग्वेज है तो ये सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा, लुक एंड फील डिज़ाइन करेगा। एडिंग करने के लिए हमारे पास सर्वर साइड होगा। क्या होगा? तो ये HTML कौन सा साइड है? वेब। तो वेब डेवलपमेंट में यू हैव अ क्लाइंट साइड, है ना? यस, यस और नो? तो जो बिजनेस लॉजिक है वो कहाँ जाएगा फिर? बिजनेस लॉजिक अप्लाई करने के लिए क्या लगेगा अपने को? सर्वर साइड जाएगा। तो सर्वर साइड में क्या लगता है आपको? एक ही फाइल होगी क्या? मिलियंस ऑफ फाइल होंगे सर्वर के ऊपर। तो उसमें बहुत सारे फाइल होंगे। उसमें ऐड डॉट जावा होगा। सो कंपाइल करने का क्या बन? कंपाइल करने के बाद, कंपाइल करने के बाद क्या बन जाएगी? ऐड डॉट जावा। क्या नाम से? एप्पल डॉट क्लास, ऐड डॉट क्लास। फिर बाकी भी रहेगी, लॉगिन डॉट जावा रहेगी, जो कंपाइल करके क्या बन जाएगी? बोलो भाई। और शॉप डॉट जावा रहेगी, जो शॉप डॉट क्लास बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे और भी, पेमेंट डॉट जावा जो बन जाएगी, पे डॉट क्लास। बहुत सारे फाइल्स रहेंगे। ठीक है, ये सर्वर पे से मिलियंस ऑफ फाइल रहेंगे, हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे फाइल रहेंगे। ठीक है। तो अभी ये जो ऐड करने का कोड है ये कौन से फाइल में है? ऐड डॉट जावा। तो बीच में उसको मालूम नहीं, ऐसे मिलियन है, उसको क्या मालूम कि किसके अंदर जाना है? तो बीच में उन्होंने रखा है रिसेप्शनिस्ट, वो है वेब डॉट XML। क्या है? एक वेब डॉट XML फाइल रखी है। तो रिक्वेस्ट पहले किसके पास आएगी? इसका नाम फिक्स है, इसका नाम फिक्स है। तो रिक्वेस्ट पहले जाएगी, वो इसके पास आएगी। तो जो क्लाइंट से एरो आ रहा है ना, जो ग्रीन कलर का एरो है, इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? याद रखना। क्लाइंट से आने वाले एरो को क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किधर आ गया? तो यहाँ पर जो है फ्रंट में, जैसे वो बंदा आया था तो जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया तो कुछ तो बोला होगा ना उसने उसको। क्या बोला था उसने? रिसेप्शनिस्ट को कुछ तो बोला होगा ना उसने आके। क्या बोला था? कैसे खड़ा होगा तुम लोग के सब मुख के जैसा? तो उसने बोला MC है ना। तो यहाँ पर जब वो क्लाइंट से डेटा आता है ना, तो क्लाइंट एक एक्शन लेके आता है। क्या लेके आता है क्लाइंट? एक क्या लेके आता है? बराक। बराक ये अपने ही दुनिया में है, मस्त है। तो उसने एक्शन लेके आया, लेट से एप्पल। क्या लाया? अरे मुंह से बात कर रहे बराक, इतना टाइम नहीं मेरे पास चैट पढ़ने का। ये नॉनसेंस टेक्स्ट पे रिप्लाई करेगा अभी।
राउट आउट द आंसर। ये पूरा रिकॉर्डिंग। तो एक्शन क्या लेके आया इसने? तो वेब एक्सएमएल में वो बोलता है कि एप्पल, क्या बोलता है वेब एक्सएमएल में आके वो? वेब एक्सएमएल बोलता है एप्पल। एप्पल का काम जो है वो बोलता है कि तू ऐड डॉट जावा में जाओ। कहाँ जाओ बोलता वो? तो वो क्या करेगा? एक्शन पढ़ेगा और राउट करेगा। क्या करेगा? जैसे उसने बोला एमसीए, क्या बोला उसने अपने को? तो उसने कहाँ भेज दिया उसको? बिल्डिंग 3 में। अगर वो आके बोलता बीसीए तो कहाँ भेजता उसको? बीसीए क्या है? कंप्यूटर्स का अंडर ग्रेजुएट ना। तो कहाँ भेजता उसको? तो यहाँ पर वो जो कीवर्ड लेके आ रहा है, जो काउंटर पे कीवर्ड लेके आ रहा है, वो मैटर करता है कि नहीं करता? अगर वो आके बोलता है कि मेरे को 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन कराना है बच्चे का, किस में कराना है, तो फिर वो कहाँ आउट करता है उसको? है ना? तो यहाँ पर वो कीवर्ड लेके आ रहा है, वो मैटर करता है ना। तो ऐसे ही ये जो रिक्वेस्ट ने जो कीवर्ड लेके आया, वो क्या कीवर्ड लेके आया? तो कीवर्ड हम देते हैं एक्शन के अंदर। तो वो गया और एप्पल को उसने टैग किससे किया? तू कहाँ चला जा। तो उसने फिर वो रिक्वेस्ट को वहाँ राउट कर दिया। क्या कर दिया उसने? वो रिक्वेस्ट को वहाँ पर, मैं तो ऐड डॉट जावा में। कोई शक? ओके, अभी अगर समझो इसको लॉगिन कराना होता मुझे इसके अंदर, ये जो मेरा ऐड डॉट एच टी एम एल नहीं होता, ये मेरा ऐड डॉट एच टी एम एल नहीं होता, और ये मेरा होता लॉग इन डॉट एच टी एम एल। क्या होता भाई? तो लॉग इन डॉट एच टी एम एल में मैं दो लेता, आईडी और पासवर्ड लेता ना। देन आई वुड नॉट टेक नंबर्स, आई वुड टेक व्हाट? ओके, तो वो जो लॉगिन है, इस कीवर्ड कैन बी एनीथिंग। हाँ, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, एप्पल वो सब आपको जो देना है वो कीवर्ड दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने दे दिया लेट्स से मैंगो। क्या दिया कीवर्ड? तो वो रिक्वेस्ट कहाँ आएगा सबसे पहले? तो वो बोलेगा कीवर्ड दो भाई, तो वो कीवर्ड क्या देगा? तो वो बोलेगा ओके आपका कोड है लॉग इन डॉट जावा। कहाँ चले जाओ आप? तो वो जो रिक्वेस्ट पहले आई वेब एक्सएमएल में, और वेब एक्सएमएल को उसने राउट तो ऐसे आता, तो वहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ गई? कहाँ गई भाई? वेब एक्सएमएल में जाएगा, वो पहले वो कीवर्ड को स्कैन करेगा। वो कीवर्ड मिला क्या? तो कीवर्ड मिला। जैसे ये बंदी जो रिसेप्शनिस्ट है, उसने उसको एम सी ए कीवर्ड दिया, तो उसने वो उसके बाद जो रजिस्टर से फाइल करी एम सी ए, हाँ एम सी ए B3 में है। तो वो क्या करता? ओके मैंगो आप चले जाओ इधर, आपका कोड इधर इधर रखा हुआ है। तो वो 1 मिलियन सर्वलेट्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता जाना किधर है। तो वेब डॉट एक्सएमएल का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया क्या? तो क्या कर रही है वो? राउट कर रही है। एक नंबर। अच्छा जरा, तो मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, आई शुड फील दैट आई एम टॉकिंग टू ह्यूमंस एंड नॉट टॉकिंग टू द वॉल्स। ठीक है? तो राउटिंग का काम करते ऐसे, हर जो रिक्वेस्ट आएगी वो एक एक्शन लेके आएगी। वो एक्शन की नोंदनी किस में होना? व्हाट इज नोंदनी मराठी वाले? नोंदनी किसको बोलते हैं? रजिस्टर। तो उसकी रजिस्ट्रेशन होना किधर? ये मेरा तोता बहुत आवाज कर रहा है आज। ठीक है? तो नोंदनी इसकी इसके अंदर होना, इसमें नोंदनी नहीं होंगी तो वो राउट नहीं कर पाएगा। अब जो है लेट से अभी अपन 2 नंबर ऐड कर रहे थे, तो वो किस पे गया वापस? वो कहाँ जाएगा? 2 नंबर ऐड का कौन सा था? तो यू राइट सम ऐड डॉट जावा, है ना? तो हम जो डेटा आ रहा है इस फाइल के अंदर, वो कौन से ऑब्जेक्ट से आ रहा है? अरे हरा ऑब्जेक्ट कौन सा है भाई? और इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम देते ना हम लोग कुछ तो। इतना तो आप लोग को आता ना अभी फ्रंट एंड। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है?
तो मैं जाऊंगा और रिक्वेस्ट से रीड कर लूंगा। तो इसमें फंक्शन है गेट पैरामीटर। फंक्शन क्या है, कौन सा, जो कौन सा टेक्स्ट बॉक्स में है, और फिर उसको इन्वर्ट कन्वर्ट टू इंटीजर, पारसेंट वारसेंट वो सब करने का, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना। उसको मैं डाल दूंगा मेरे इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो वो कन्वर्ट टू इंटीजर करके n1 में कभी n1 में क्या आ गया, ऐसे भी n2 करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट पारसेंट, ठीक है, पारसेंट नहीं, नॉन सेंस, क्या फंक्शन है, गेट पैरामीटर, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। और क्या कर दूंगा मैं, ठीक। अब जो मेरा डेटा जाएगा ना यहाँ से, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझ में आना, रिस्पॉन्स डायरेक्ट जाता है, रिस्पॉन्स डजंट गो वाया द। तो वो जब वापस जाएगा, जब वो वापस जाएगा फॉर्म लेके, तो कहाँ से जाएगा वो, विल गो टू द रिसेप्शनिस्ट। हाँ, तो रिस्पॉन्स डायरेक्टली आएगा। तो जो सर्वर से आता है क्लाइंट को, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं उसको, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स है ना, अच्छे से समझ के ले लो। तो रिस्पॉन्स आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा आउट नाम का। क्या नाम का बनाऊँगा ऑब्जेक्ट, तो वो रिस्पॉन्स को करके, और इस आउट से मैं प्रिंट एल कर दूंगा, किसको, अब उन्हें N3 कैलकुलेट ही नहीं किया, उन्हें N3 कैलकुलेट ही नहीं किए। N3 कैसे होगा अभी, बस, तो ये सिंपल से। और फिर वो जो है जब डिस्प्ले करेंगे उसको, तो जो 30 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये सब कचरा पट्टी निकल जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये जो पेज था ये पहले से नहीं था। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने डोसा ऑर्डर किया, तो क्या वो डोसा उसके पास पहले से था क्या, आपके ऑर्डर करने के बाद, यानी आपके रिक्वेस्ट भेजने से पहले वो डोसा वहाँ था क्या होटल में, वो कब बना डोसा, अगर आप बोलते कि एक थम्स अप लेके आ, तो वो थम्स अप क्या आपके ऑर्डर के बाद बनाया गया उसने, क्या थी पहले से ही, पहले से थी ना। पर वो डोसा, तो ये जो रिस्पॉन्स आएगा ना, ये डायनामिक पेज आएगा, ये पेज पहले से नहीं था, ये आपके रिक्वेस्ट के बाद पेज बनाया हमने, सर्वलेट ने पेज बनाया, और वो पेज को रिस्पॉन्स में भेज दिया करके। तो उसने एक पेज बनाया, ऐसा समझो। तो उसने ये पेज बनाया, तो पेज में क्या लिखा उसने, क्या लिखा पेज में उसने, N3 में क्या एप्पल है क्या, 30 है ना। और फिर ये पेज जैसे प्रिंट एलन करेंगे अपन, तो ये पेज जो बनाया है उसने, वो रिस्पॉन्स से आएगा और यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। कोई शक, तो ये जो 30 वाला पेज था, ये रिक्वेस्ट भेजने से पहले था क्या, नहीं था ना। क्योंकि अगर वो भेजता 11 और 21, तो अगर वो 11 और 21 भेजता तो भी 30 होता क्या। जो डायनेमिक वेब पेजेस है क्या ये है, तो यहाँ पर जो फिर जो पेज जनरेट होगा, वो पेज क्या होगा, तो पेज क्या होगा, तो N3 में क्या आएगा, और जब वो आउट डॉट प्रिंट एल करेगा, तो वो जाके प्रिंट कर देगा जाके ब्राउज़र पे, नहीं सॉरी इस पे, हाँ ब्राउज़र पे, कंसोल पे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट फैल जाएगा 31। अरे बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, समझाऊँ। तो ये डायनामिक वेब पेजेस बनते, क्या बनते हैं इसमें, स्टैटिक वेब पेजेस नहीं बनते। इज द फ्लो अंडरस्टूड, इज द लाइफ साइकिल अंडरस्टूड। तो अभी मुझे बोलो, मुझे कितने फाइल मेंटेन करने पड़ रहे हैं एक सिंपल 2 नंबर को ऐड करने के सर्वलेट के प्रोग्राम में, टोटल ना, क्या टोटल, माई एम्फसिस ऑन द टोटल कीवर्ड।
हसान किधर है? हसान सो रहा क्या? गाड़ी खरीदेगा क्या? क्या फोटो खींचेगा सिर्फ गाड़ी के साथ में? ऐसे काम करके अपनी गाड़ी के साथ लोग फोटो खींचे। सो रहा है बैठे बैठे सिर्फ। तो, तो आंसर तो दे, कुछ बोल नहीं रहा तू। तो कितने फाइल बनाने के अपने को? एक डॉट 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 एच टी एम एल का नाम फिक्स है क्या चेंज है? जो आपको नाम देना है वो दो। तो पहला तो एक डॉट एच टी एम एल। दूसरा, उसका नाम फिक्स है क्या चेंज कर सकते? उसका नाम फिक्स्ड है। और तीसरा, और डॉट जावा को क्या करना है फिर? कंपाइल करने का नहीं का अमान? तो कैसे बोला कि 3 फाइल है करके? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ फाइल, मैं कोड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फाइल। कीवर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं? कितने फाइल मेंटेन करने का अपने को? कौन से? एप्पल डॉट एक्सएमएल चलेगा क्या? एप्पल डॉट एक्सएमएल। हाँ। और फिर डॉट ऐड डॉट जावा का क्या होगा कंपाइल करके? हाँ। तो दो वर्ड्स को मिक्स करके वर्ड बनाते हैं आजकल, मालूम है क्या? तुम लोग तो यार जनरेशन जेड है ना यार, जेन जी है तुम लोग, तुमको ज़्यादा आता रहेगा ये। नहीं क्या, दो वर्ड को मिक्स करके वर्ड बनाते? हाँ। हाँ क्या बनाते, क्या नाम बोलो? हाँ ये तो ये जो है ना, ये रणबीर और कतरीना है ना, रणवीर और दीपिका। और ये विराट का और अनुष्का का है ना, विरुष्का। तो ये विराट और अनुष्का क्या क्या नाम बन जाएगा ये, बोलो भाई? तो ये विरुष्का कोई डिक्शनरी नेम है क्या? इन दोनों का अमेलमेगेशन, इन दोनों के नाम का अमेलमेगेशन है, क्या बोलते हैं तुम लोग? ये है ना? हाँ क्या ना? हाँ बोल रहे हैं ना, ना बोल रहे हैं कि क्या करें? तो ऐसे ही है ना, सर्वलेट भी कोई कीवर्ड नहीं है, वो भी ऐसा ही है। सर्वर मतलब क्या? जो हमारी फाइल है वो कहाँ है? क्लाइंट पे का सर्वर पे? अरे ऐड डॉट जावा किधर है? सर्वर पे ना। और कोड को हम बोलते हैं स्क्रिप्टलेट। क्या बोलते हैं कोड को? तो अभी इन दोनों वर्ड को ज्वाइन करो तो क्या वर्ड बनता, बोलो भाई? हाँ, सर्वलेट मतलब क्या? तो सर्वर एक मशीन है, सर्वर क्या है? और स्क्रिप्टलेट एक कोड है। इसका मतलब क्या? तो सर्वलेट क्या हो गया? सर्वर मशीन पे रखा हुआ कोड। कोड केप्ट ऑन सर्वर मशीन ना, केप्ट ऑन। बट वो सोर्स कोड नहीं है, वो सोर्स कोड नहीं है, वो बाइट कोड है। क्या है? बाइट कोड कौन सी फाइल होती? बाइट कोड कौन से होती? डॉट जावा का डॉट क्लास। तो सर्वलेट कौन सी हुई इसमें से, ए क्या बी? हाँ। तो जो अपनी सर्वलेट है वो क्लास फाइल है, इसके लिए सिर्फ जावा फाइल लिखना ज़रूरी अधूरा काम है, पूरा नहीं काम है। पूरा काम क्या है? क्या करना उसको? हाँ, उसको कंपाइल भी करना, फिर उसको समझा? नहीं, बात वो समझ में आ रही नहीं शायद। तो सर्वलेट क्या है फिर? सर्वर पे रखी हुई क्लास फाइल, सर्वर रखी हुई। और क्लास फाइल जब तक नहीं बनती तब तक हमारी क्या नहीं बन जाती? तो इसके लिए जावा है। और कंपाइल करना ज़रूरी है क्या नहीं है फिर रन करने से पहले? क्या ज़रूरी नहीं है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर्वलेट कौन सी फाइल रहती?
क्लास फाइल, तो सिर्फ जावा फाइल लिख के कोड रन करेंगे तो 404 आएगा। क्या आएगा? मतलब फाइल नॉट फाउंड, क्या बोलेगा वो? तो अभी अपने को कितने फाइल को स्टोर करना है एक सिंपल प्रोग्राम के लिए? और फिर आगे जाके आपके असाइनमेंट ऐसा है तो एक चौथा लेयर भी आ सकता है इसके अंदर कि अगर मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो फिर मेरा सर्वलेट डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। अब सर्वलेट डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा तो ये राइट एरो और ये लेफ्ट एरो क्या है बोलो फिर? क्या है जैनब? नहीं, ये लैग कर रही है, लैग कर रहे, सो रहे ये लोग, सो रहे। मेरे सोसाइटी के बच्चे लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं मालूम, ये टाइम पे वो लोग। मैं वही सवाल पूछता हूँ जो मैंने पढ़ाया है, या आपको मालूम है कि आप, मुझे मालूम है कि इसको ये चीज़ मालूम है। आई विल नॉट आस्क यू एनीथिंग। विल आई आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन जीएसपी टुडे जैनब? Why no? Because I know and you know that we both know that we don't know JSP, that you don't know JSP. अरे डेटाबेस से कम्युनिकेशन कौन करता? JDBC करता। क्या करता? तो ये JDBC का कोड यहाँ पर आ सकता। इफ द सर्वलेट रिक्वायर्स डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो एक फोर्थ टायर भी आ जाता। तो ये 4 लेवल हो जाते। अगर सर्वलेट में JDBC की ज़रूरत नहीं, जैसे ये 2 नंबर ऐड करना, ये 2 नंबर ऐड करने के लिए विल रिक्वायर डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो ये लेवल उस प्रोग्राम में ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, इतना पार्ट। बट अगर वो डेटाबेस में है कि भाई ये लॉगिन वाला था, तो लॉगिन आप कैसे करेंगे ऑथेंटिकेट? अरे भाई alice@gmail.com एक वैलिड यूज़र ईमेल है और उसका पासवर्ड alice123 है। अब कैसे करेंगे ऑथेंटिकेट इसको? तो ये सर्वर को लगेगा ना डेटाबेस कनेक्टिविटी। हु डज कनेक्टिविटी? द जावा फाइल कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस, राइट? तो यहाँ पर अपने को डेटाबेस कनेक्टिविटी भी लग सकती है आगे जाके, तो तुम्हारे स्लिप्स के अंदर ये भी है। तो बी अलर्ट। तो लेट्स नॉट गो इन द डिटेल्स टुडे, सो लेट्स रिमूव दिस पार्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ फिलहाल अभी, तो मैं सिर्फ फिलहाल अपने इसमें ही रह रहा हूँ। तो अभी मुझे बताओ, एक सिंपल सा सर्वलेट लिखने के लिए मुझे कितने फाइल होना? कौन से बोलो भाई? वेरी गुड। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे पुराने सराने, जो भी ओरेकल, PHP और कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा आपने, VS कोड और विजुअल स्टूडियो। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो पहले पूछता है आप कौन से ड्राइव में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो कहाँ करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भाई? सी को छोड़ के, सी को छोड़ के, सी COS का फाइल रहता, ठीक है। डी ड्राइव में आप गए, तो जब आप इसके लिए अपने को लगेगा अपाचे टॉमकैट सॉफ्टवेयर। क्या लगेगा अपने को? वेब सर्वर। क्या लगेगा अपने को? ये जो अपना वेब है ना, ये सर्वर, ये अपना टॉमकैट सर्वर है। क्या है ये जो अपना सर्वर है ना इधर, तो टॉमकैट सर्वर होना अपने पास। क्या होना? जब टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो डी ड्राइव में जाके उसका एक फ़ोल्डर बन जाएगा। हाँ क्या ना? अपाचे टॉम, मेरा मेरा वीडियो है तो शेयर करूँगा, उस पर देखिए इंस्टॉल। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स फोल्डर्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, बिन, लिब, है ना, टेम्प, फैम्प। तो ये सब जो आते ही है ना, जेनरिक फोल्डर्स बन जाते हैं अपने हिसाब से। कौन से नाम रहते हैं उनके? बिन, लिब, टेम्प। जब आपने जावा इंस्टॉल किया होगा तभी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये सब जो काले वाले फोल्डर्स, ये सब जो है ना रेडीमेड फोल्डर्स है। क्या है ये सब? क्या है? प्री डिफाइंड है। क्या ये? तो आपको उस पर नज़र रखना है एक फ़ोल्डर को जिसका नाम है वेब ऐप। क्या नाम है?
यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी। तो ये जितने काले रेक्टेंगल ये यूजर डिफाइंड है क्या इनबिल्ट है। अब आपने जाना है वेब ऐप फोल्डर के अंदर और वहाँ से आपने अपने फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। तो अगर आपका असाइनमेंट 1 आया है सर्वलेट का, तो पहले जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना असाइनमेंट 1, ठीक है। या जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, समझो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप प्रोजेक्ट बना रहे हो स्विगी पे, तो उसका नाम दे देना स्विगी, ठीक है। जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, तो अपना प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया है मैंने, लाल वाला फोल्डर मैं बनाऊँगा कि बना बना मिलेगा मेरे को, क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ पर है, साउथ हेमिस्फीयर में। कहाँ पर है, और मुझे कितने फाइल मेंटेन करने हैं भाई, तो फाइल को मैं डाल रहा हूँ ओवल में। कितने फाइल मेंटेन करने हैं मुझे अमान, छोटे से प्रोग्राम के लिए, नाम बोलो उनके। वेब एक्सएमएल, एक्सएमएल का नाम तो फिक्स है ना, नाम फिक्स है, ठीक है, इसका तो नाम फिक्स है। और फिर जावा, और कंपाइल करके क्या बन गई, ठीक है। तो जैसे ही आपने आपका पहला फोल्डर बनाया, उसके अंदर जाके आपकी HTML फाइल बना देने का, कोई शक, जितनी भी हो, यस नो मे बी। तो वहाँ जाके एक और फोल्डर बनाने का, वेब -inf कैपिटल में, क्या नाम से, छोटे में कैपिटल में। तो ये ओवल क्या है और रेक्टेंगल क्या है, ओवल क्या है और रेक्टेंगल क्या है, फोल्डर, ठीक है ना। Now I'm spoon feeding this to you all now। ये फाइल है और ये फोल्डर, कोई शक। ओके, अब वेब INF में गए, वेब INF में जाके आपकी वेब XML रख देने का, ठीक है। और एक और फोल्डर बनाने का जाके उसके अंदर क्लासेस, क्या फोल्डर बनाने का, छोटे में क्या बड़े में, छोटे में। नाम क्या फोल्डर का, क्लास है, क्लासेस, क्या क्लासिक, हाँ, क्या नाम है, क्लासेस। और फिर वहाँ जाके आपकी डॉट जावा फाइल रख देने का, क्या रख देने का, क्या रख देने का, और उसको कंपाइल करने का उधर ही, तो क्या बन जाएंगी वो, तो समझ में आया आर्किटेक्चर कौन सी फाइल आ जाएगी, क्या समझ में आया, कौन सा रेडीमेड है और कौन सा यूजर डिफाइंड, समझ में आ गया, समझ में आ रहा तुम लोग को ना, वेरी गुड, आई शेयर दिस टू योर। नाउ लेट्स, so have you all installed Oracle Apache? Yes, now I want you to open that video over here, and now come down in that more, yeah, click on more. Yes, now you follow these steps step by step, okay. So let's start first. So first go to this website tomcat.apache.org, download, and search for download Apache Tomcat 8. Yeah, so let's take it step by step, very simple. I've made it so you all can go
So scroll down. Scroll down. Yeah, you can take release 9 or 8, whatever. Yeah, see over there. You see download against 8. Yeah, down. That is 9, I guess. Yeah. Mute that video. Mute that video. Yeah, mute that video and come here. Now from here, see download which version. See, go to Tomcat 8 towards the left window. See download and Tomcat 8 in the left window. Yeah, yeah, go here. Yeah, scroll. Yeah, go below. See the binary distribution. Yeah, so what do we have to download? Just go and check on the website. Everybody comes to know. Go to the yeah, go to the video, and I have written download 32-bit/64-bit Windows Service Installer. Go back to the website now. So choose that, the last option in the core, last option. Yes, click that and see it is now downloading. So mashallah. Yeah, first let it download completely. Okay, don't rush into that. Yeah, now go to the folder. It is downloaded. Yeah, or directly you can play from here. Okay, so now open the video. See what I've shown in the video. Go. So go up. Video. This is after the installation. So in the video I have told, yes, forward this. Yeah, so you have to be this we have done. Okay, forward this. Keep forwarding. Yeah, keep forwarding. This we have done already. This we have already done. Yeah, keep forwarding. Yeah, now this is what we have to do. Okay, so what you have to do is click on next. Click on I agree. Okay, next. Yeah, keep moving forward. Yeah, then here select the normal is okay. So see, we have normal full. Okay, so go for the full installation. Okay, go for the full installation, and here you have to set a password for your Apache, like how we would set for SQL. Okay, so below in the username and password, you have to give a 6-digit string. So you can give your name AAMAN, but that will be 5, right? So try to give a 6-character string. So you can give Aman P, or you can give your surname, whatever. Okay, so you have to give it twice in the username and the password. You can keep it same. Okay, so here you can keep it same. Next, and then it will install. Yeah, keep the location, change the location to D drive. Okay, don't keep it in C drive. So better you install it in D drive. Only keep the OS related softwares in C drive. Rest you can keep it. You can change the location, and you can start. Okay, so now pause this now. Okay, so you can change the location as I'm saying over there. Yeah, now go to R. Now go to R installation. So go to next. Okay, I agree. Select full. Go to next. Yeah, now here the port is 8080. Okay, 8080 is your port. If you want, you can change the port. Change it to 8089 if you want. If you feel that any other software is running on 8080, like how Hassan had raised, some XAMPP is on 8080. So change this to 8081 or 8080, make it 8089. Okay, so if your XAMPP is on 8080, okay, no, keep the name, don't change the name. Yeah, now come to the username and password. So now give over here a 6-character string in username and password, which you should remember. Okay, yeah, no, better you give only characters, don't give string. Yeah, give Aman P. Yeah, no, that's okay. Aman P is sufficient. Okay, now repeat the same below also. Okay, and then click on next. Yeah, now change this, browse this and change this location. Okay,
No. This is the no. Cancel this. Cancel this. This is the GRE it is taking. Your Java is over here, right? Your Java is installed. Yeah. So next. So this is the location of your Java. So next. Now change the location of Apache Tomcat. Browse and put it on D drive. Do you have any D drive? This PC. This PC. Yeah. Go to D drive. Yeah. Make a folder over there. If you can make a folder, will it allow you? Yeah. See. Make new folder. Below. Besides OK, towards the left hand side of OK. Select D drive and besides OK, towards the left. Yeah. Make a new folder and say Apache Tomcat. One word. Yeah. Fine. Perfect. OK. And try to install over there. Yeah. Makes sense. Install. Okay. So this will install in a minute. And now you can finish. So no. Uncheck the run. Aman. Close this. Yeah. Close this notes. Yeah. Now come back to the video. So till here we have done, right? So here I'm telling you can change the browse and change the location. So better you can don't install on D drive or on C drive. So your drive only for the Windows. Yeah, forward this. Yeah, so we are looking for the where to forward this. This we already done, right? Where we have to install. So we made a folder here. Forward till the installation. Yeah, forward till the installation. New folder is made. Yeah, till here we have come, right? So here till here we have come. Till here we have come. Yeah. So I was telling you this. Uncheck this. Don't run it. So we had cancelled the run. Okay. So now we finish. So here I'll finish over here now. See, I'll click. I have unchecked both the boxes. So I'll finish. Now after the finish, what we have to do, that we will mention over here. Now after the installation is done. Okay. Now what you have to do, double click on the Excel file, change the connector, password. Okay. Then JDK we have set. Come down. Okay. Change the path to D drive. Come down. Yeah. Now where you have to go. Now go to a search button. On the Windows you have a search button, right? Aman. Now don't see the video. Video job is over now. Now only come to the documentation. Aman, go to the documentation in read. Now no need to check the video anymore now. Video job is done. Go to the read part of the video. Yeah. Now we are at step 2 is done. Now we are after browse Apache Tomcat. Okay. Now we are in the search part. So now go and search for services. Yeah. Search for services. Yeah. See services. Now in services. Yeah. Click on that services. Now search for Apache Tomcat. You see Apache Tomcat is running. It is showing running. Now read the documentation. Alt tab. Flip by Alt tab. A programmer doesn't use the mouse much. Flip by Alt tab. Yeah, so it says right click on the properties. Right click on that. Yeah, and what it says? Stop it. It says what? Startup style, make it manual. Yeah. So right click on that. Yeah. And stop this first. Yeah, stop it. And now right click. Go to properties. And startup style. Do you see anything startup style? You see startup style over there. A combo box is the combo box automatic. Make it manual. Okay, and apply and OK.
Okay. So here, now close this. This job is done. Close it now. Close it. No minimize. Close it. Yeah. Now see. Now you have to do one more setting. You have to copy the servlet jars. So now from where to copy the Apache folder which you made? Go there. Don't minimize this. Keep it open. Yeah. So go to this folder. Yeah. You can overlap both the folders. Overlap this with the browser. Aman. Overlap this with the documentation, so that we know what we are doing. Yeah. So what we have to do is now go to Apache. Where did we install Apache? Yeah. Go there. Don't have currently. Continue. Yes. Continue. Yeah. So now go to Tomcat. In that, go to lib. Go to lib. In that lib, you have these two jars file. Copy servlet api.jar and JSP api.jar. Copy them. Select them both together with control click. Yeah, JSP API and servlet, both are adjacent. Yeah, copy them, control C. And now go and paste them in your JDK lib folder. Go and paste it in your JDK lib folder. JDK lib folder will be C program files, Sada program files. Yeah, this one. Java. Looks like your Java. Then your JDK. In JDK, go to lib. Paste them over here. Control V. Continue. Continue. Both the files have come. I can see servlet. Where is JSP? Yeah, both have come. Okay, both have come. Now come to the next step. Set environment variables. So now go right click on this PC. Right click on this PC. Right click. Go to show more options. Properties. You see advanced system settings. Towards the right you have Aman. Left. Go back. Go previous page. Setting previous page. Yeah. See below domain or group, system protection, advanced system settings. Yeah, go there. Go to environment variables. And in the system variable, not in the user variable, system variable. Okay, you have made all in the user variables. Okay, no worries. Now the user variables. Now go to the documentation. Go to the documentation. What am I telling over there? You have to make two variables. Catalina home. First make Catalina home. Variable name is Catalina home. Copy it from here. Yeah. Yeah, make a new one. And paste the path of your Tomcat folder which you created. Go to your D drive. Go to Apache Tomcat. Yeah. Now go back. One step back. Yeah. Copy this folder. No, it's okay. Copy that. Yes. Copy the folder path. Yes. Copy this. And paste this over here. Okay. Okay. Now make one more variable. Just check what is the variable name. Class path. Okay, in the class path you already have. Just add these two. Add the path of your JDK with the servlet API jar files. So where you pasted those two jar files, go in that location. Where you pasted them. So it was in C drive, program files, Java, JDK, and lib. Yeah, so copy this path, and then append the class names to it.
What happened? Just make it a bit bigger, no, Aman. Yeah, copy this and go and paste it in the class path. In the class path, cancel this, cancel this. You already have a class path, right? Double click that class path. Up, third variable. Yeah, and just click on new. Click on new and paste it. And after that, concatenate the two jar file names also. You can take the names from the YouTube video, and the names remain the same. Yeah, just copy it from here. Servlet API.jar and JSP-API.jar. Or you can type it if you want. Slash. No. You must now come back again. Slash. And now go and copy it from there. Copy the name. Better you copy the name, don't write it. Don't think, Aman, don't copy it. Paste that once again. Okay, no worries. Paste it. Paste the name. Servlet API.jar. Paste it. We'll copy it again. Select it. Go at the end. First, go at the end. Use the right arrow key. Use the right arrow key in your keyboard to go till the end. Yeah, now paste. Yeah, now copy this path all over again. No semicolon. If it is an individual path, no semicolon. Yeah, copy this whole and click on new. Paste it again. Just replace servlet with JSP. Replace servlet with JSP. No, just do it over there. Double click it. Okay, very good. Okay, apply. Okay. All okays. Okay, now step 5. Okay, that is done. Now starting the server. So now go to your Apache folder, Tomcat bin. Go to your Tomcat folder, D drive. Go to Apache. Yeah, go to your bin, and in the bin you see this feather, the red feather application. Yeah, you can just copy that and put it on a desktop. So no need to come here every time. Or do you see the startup icon? Yeah, you can copy that also and put it on the desktop. Directly you can start the server. So copy it. Yeah, put on the desktop. Yeah, put on the desktop. Yeah, paste it. Yeah, double click this. So this should start your server. Okay. So yeah, Apache Tomcat allow. So once the server is started, it will show, see this, server startup in these many milliseconds. At the end you see, Aman, at the last you should see this message, server startup in 1334 milliseconds, right? So as now there are no application, it started up in 1 millisecond. Now once you add application, it might take 3 milliseconds, 4 milliseconds and more time also. Okay, now once done, now go to the documentation. Okay, documentation. Now startup is done, right? Now go to step 5, login. So go and paste localhost :8089 on the browser. Open Chrome. Yeah, punch in localhost :8089. Hit enter. Okay, in this way to go. Check over there. In that, go to manager app. You see,
तो क्लिक ऑन मैनेजर ऐप नाउ, and now first I will ask you for the ID and password. Come on, enter that. आमन पी था, आमन पी। Sign on, save it for future references. Yeah, so now your server has been set up. Okay, so now you can, so now let's try to do on your machine only. So now open Notepad plus plus. Yes, so now I want you to create a HTML page which will accept two numbers fatafat using form and text box, and enter number one, input type is text, all that faster. ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाओ इसके अंदर और उसके आगे लिख दो थ्रोज एक्सेप्शन, वो उसकी तरह आता, हाँ वेरी गुड। उसको नेक्स्ट लाइन पे ले ले, एंटर को कर्ली ब्रैकेट को नेक्स्ट लाइन पे ले ले, हाँ उसके आगे लिख दे थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन कॉमा आयो एक्सेप्शन। नैरो कर दे और बड़ा कर दे, फुल साइज देखा ये, कैपिटल आयो, कैपिटल IOE, तीनों कैपिटल रहेंगे। हाँ, अब ये आयो एक्सेप्शन कौन से पैकेज में अमान? हाँ, तो वो इंपोर्ट कर ले, और सर्वलेट एक्सेप्शन है जावा एक्स डॉट सर्वलेट में, तो इंपोर्ट कर ले इनको। इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टार, सेमीकोलन, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, छोटा पैकेज का नाम छोटा बाबा, और जो HTTP सर्वलेट है वो है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट स्टार। नंबर 2 कॉपी कर ले, हाँ पेस्ट कर दे, और डॉट के बाद एक और HTTP लगा दे डॉट स्टार, वेरी गुड। तो इंपोर्ट दीज 3 पैकेजेस, ठीक है। अब अंदर आ गए। अब सबसे पहला अपना जो रिस्पॉन्स जाने वाला है वो रिस्पॉन्स से आई कैन सेंड अ प्लेन टेक्स्ट और आई कैन सेंड HTML पेज। तो लिखो RES डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, S छोटा, C का कॉन्टेंट का C बड़ा। ये लर्न बाय हार्ट है, कुछ चीज़ें जैसे अपने इसमें था ना, इसमें क्या बोलते हैं JDBC के अंदर शुरू के 4-5 लाइन वो फिक्स थे ना, क्लास डॉट फॉर नेम कनेक्शन वो सब, तो ये ऐसे 4-5 लाइन फिक्स है। हाँ, ब्रैकेट पे डाल दे टेक्स्ट / HTML डबल कोट्स में और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स का टाइप हो गया, ठीक है। अब अपने को रिस्पॉन्स भेजने के लिए चला गया प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, एंटर कर। तो प्रिंट राइटर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना, प्रिंट राइटर क्लास है, कैपिटल P क्लास है भाई, उसका ऑब्जेक्ट बना OUT इक्वल्स टू लिख रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, RES डॉट गेट राइटर, ठीक है। हाँ बस, वेरी गुड, हो गया सेमीकोलन, अब हो गया। अब तेरा वो काम कर ले, जो अपना फर्स्ट नंबर आने वाला है वो किस में आने वाला है, एंटर मार, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट नहीं, डेटा आ किस में रहा है भाई साहब, REQ में आ रहा है ना। हाँ, डॉट गेट पैरामीटर P कैपिटल, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम डाल दे डबल कोट्स के अंदर। हाँ, अब ये जो डेटा है बाय डिफॉल्ट आएगा इंटीजर में, तो उसको कन्वर्ट आएगा स्ट्रिंग में, तो उसको पास इंट कर ले, नंबर 9 को इंटीजर डॉट पास इंट, कैपिटल I से इंटीजर पूरा, कैपिटल I से TEGER डॉट पार्स इंट, छोटा p फंक्शन है वो, और ब्रैकेट लगा दे वापस REQ के पहले,
तो एक क्लोज भी कर T1 के बाद, और अभी LHS में इंटीजर N1 ले ले, छोटा इंटीजर N1। ऐसे ही N2 भी ले ले, लाइन नंबर 9 कॉपी पेस्ट कर दे और N2 और T2 कर दे। तो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 8 तक लर्न बाय हार्ट है हर प्रोग्राम में। फिर एंटर कर, इंटीजर N3 इक्वल्स टू N1 प्लस N2, और जो अपना आउट बनाया अपन ने आउट, उससे प्रिंट लेन कर दे N3 को। ठीक है, ये अपना हो गया सर्वलेट। इसको रख दे मैरिनेशन के लिए, एक नया टैब खोल। ठीक है, तो web.xml का एक बना बनाया फॉर्मेट अपने पास है, तो एक काम कर, गो टू योर अपाचे फोल्डर, जहाँ आपका अपाचे है ना, जहाँ आपने अपाचे इंस्टॉल किए, हाँ उसमें पीछे जा, इसमें जा, गो टू वेब एप्स, गो टू एग्जाम्पल्स, गो टू वेब INF। तो यहाँ देख वेब XML है ना, राइट क्लिक करके ओपन नोटपैड प्लस प्लस कर, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, राइट क्लिक करना सही से बराबर उसके ऊपर, हाँ ठीक है। हाँ अब देख इसमें क्या कॉपी करना है, देख कॉपी ना लाइन नंबर 18, हाँ ये कॉलम बस लाइन नंबर 18, ओनली लाइन नंबर 18, एडवांस ओनली लाइन नंबर 18, हाँ कॉपी इट एंड पेस्ट इन योर 67, या remove the kachra patti of XML, just go to web app only, remove this kachra patti, just keep web app, बस रेस्ट कचरा पट्टी निकाल दो, ओनली कीप वेब ऐप। एंगुलर ब्रैकेट भी रखो, एंगुलर ब्रैकेट रखो, APP के बाद का कचरा निकाल दो, हाँ ये कचरा निकाल दो, हाँ क्लोज द एंगुलर ब्रैकेट आफ्टर P, स्पेस निकालो, हाँ तो इसको ओपन किया क्लोज भी करने का, तो इसको क्लोज भी कर दे, ऐसा ना, ओपन हेड क्लोज हेड, ऐसे इसको ओपन कर क्लोज कर, नीचे ले ले, स्लैश मार के क्लोज कर दे, नीचे ले ले उसको, हाँ वेरी गुड, कम डाउन, यस वेरी गुड, कीप इट कीप गोइंग डाउन, घसीट नीचे उसको पूरा, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ गो टू द वेब XML। ठीक है, अब एक जोड़ी उठा यहाँ पर सर्वलेट की और सर्वलेट मैपिंग की, नीचे आ, एक जोड़ी उठा सर्वलेट की सर्वलेट मैपिंग की, नीचे आते यार, नीचे बहुत मिलेगा तेरे को, नीचे आते जा, सर्वलेट सर्वलेट मैपिंग की जोड़ी उठा एक, हाँ नीचे आते आते जा, बहुत है, आते जा, हाँ देखो आ गई, एक सर्वलेट को उठा, हाँ पूरा उठा, वेरी गुड वेरी गुड, कर दे पेस्ट, और एक उठा सर्वलेट मैपिंग का, सर्वलेट मैपिंग नीचे आएगा, नीचे मिलेगा तेरे को, हाँ देख आ गया, उठा ले एक, वेरी गुड, बस परफेक्ट, इतना करे तो काफ़ी है अपना, वेरी गुड। अब देख URL पैटर्न के बाद जो स्लैश है ना, स्लैश के बाद में तेरा एक्शन का नाम दे, तो गो टू योर HTML फाइल, गो टू HTML फाइल, हाँ तो तेरा एक्शन क्या दिया तूने, आमान है ये कॉपी कर, हाँ गो टू XML, रिमूव वो लास्ट वाला डिलीट कर दे, लास्ट फोल्डर लास्ट फाइल डिलीट कर दे, इसकी जरूरत नहीं अभी, हाँ बस काम हो गया। अब जो लाइन नंबर 10 है URL पैटर्न, स्लैश के बाद में पूरा निकाल दे, और स्लैश रख एंड पेस्ट योर एक्शन नाउ, तो ये तेरा एक्शन हो गया। और सर्वलेट नेम में तेरा स्ट्रिंग दे, जो भी तू स्ट्रिंग देना चाहता है, तेरे जो दिल में तेरे स्ट्रिंग आ रहा है, कुछ भी दे दे, बड़ा दे दे, बराक छोटा, ठीक है, छोटा छोटा बी, छोटा बी, हाँ अब लाइन नंबर 9 कॉपी कर पूरी, हाँ कॉपी कर, और लाइन नंबर 4 से रिप्लेस कर दे एज इट इज, ठीक है। और अभी जो तेरा क्लास का नाम है वो डाल दे लाइन नंबर 5 के अंदर, बस, तो तेरे क्लास पे जाना जावा में, कॉपी कर ले वहां से,
हाँ डेमो ऐड, वेरी गुड, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। तो देखो, तो रिक्वेस्ट आएगा आपके एक्सएमएल में, पहले हिट करेगा यूआरएल पैटर्न को, तो बोलेगा आमन, तो आमन से वो एक नेम लेगा बराक, अब वो जाएगा कि सर्वलेट में बराक किससे लिंक्ड है, डेमो ऐड, तो रिक्वेस्ट को वहां डाइवर्ट कर देगा। अरे समझ में आ रहा क्या अमान? अब इन तीनों को सेव कर दे उस आर्किटेक्चर जो मैं तुझे बोला था। सेव दीज 3 फाइल्स नाउ, HTML, XML एंड .java in the way I told you to save. I have shared the architecture on the WhatsApp also to you all. Let's start with this. Click on save. Click on save. Yeah. So go to your Apache Tomcat. Go to D drive directly. हाँ Tomcat में जा, हाँ go to web apps. go to web apps में अब एक फोल्डर बना अपने खुद का एप्लीकेशन का, तो लिख दे माई फर्स्ट सर्वलेट। एक फोल्डर बना ना, लेफ्ट में है ना भाई, अरे बैल कितने अंदर जा रहा, नेविगेट कर रहा, माई फर्स्ट सर्वलेट। फोल्डर बना, अंदर आ जाए उसके, और यहाँ सेव कर दे इसको कुछ भी नाम से, add.html या index.html दिया तो और भी अच्छा था कि इट विल ओपन डायरेक्टली, इंडेक्स फाइल अपने आप खुल जाती है फटाफट। हाँ ठीक है, हो गया, वेरी गुड, सेव कर दे। यस, नाउ गो टू द वेब एक्सएमएल। सेव पे क्लिक कर। अब इसके अंदर बना एक फोल्डर वेब INF, उसी के अंदर ना भाई, हाँ सबरेट में बड़ा कर ना भाई, इसको बड़ा कर ले, मालूम तो पड़े तो कौन से फोल्डर में है करके, बड़ा कर इसको, बड़ा ही होता क्या ये, फुल नहीं होता, फुल साइज। तो हाँ ठीक है, जा उधर, तो ये उसी में था तो सही था, तो चलो ठीक है, जा इसमें, इसमें जा, और इसमें जा, हमारे नाउ इसमें एक फोल्डर बना इधर अभी, देख रहा है क्या, न्यू फोल्डर का, हाँ बाजू में वेब -INF कैपिटल में, अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर हाइफन मालूम नहीं तेरे को क्या है, INF, INF, हाँ उसके अंदर जा, इसके अंदर सेव कर ले web.xml। यस, तो वेब INF में गया, इसको सेव कर दे web.xml, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ऑल स्मॉल, वेरी गुड। अब जाके उसको भी सेव कर दे .java को, क्लास का नाम कॉपी कर लिया ना, हाँ वेब INF में जा, हाँ तो अभी वेब INF में आ गया, एक फोल्डर बना क्लासेस, सब छोटे, इसके अंदर जा और सेव कर दे .java, जो भी तेरा फाइल का नाम है। अभी कंपाइल कर ले इस फाइल को फटाफट, इधर ही कंपाइल कर ले उसको, फाइल CMD जावा C, वेरी गुड, परफेक्ट, चला, आता जावा ब्राउज़र ला, सब हो गया, बस ठीक है, ठीक है, रन नहीं करते भाई, यार रन नहीं करते उसको, छोड़ देने, हाँ अब ब्राउज़र पे जाए फटाफट, जब कंपाइल कर लिया, अब ब्राउज़र पे जाने का, यस गो टू मैनेजर, खुला ना मैनेजर तेरा पीछे, हाँ यस, इसको रिफ्रेश कर ले बस, ठीक है, अब नीचे देख तेरा आ गया रहेगा माई फर्स्ट सर्वलेट, आ गया कि नहीं, उस पर क्लिक कर, तो दिस विल ओपन योर, बटन है क्या, टेक्स्ट है भाई तेरा, ये सबमिट, क्या सबमिट को तूने, हाँ अरे सबमिट, सबमिट बटन है क्या, सबमिट, सबमिट क्या है, लग नहीं रहा हो, हाँ क्या चल रहा,
देख जाके, देख देख जाके, शायद। ओ बाबा महाराज, हाँ सबमिट हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी आप चेंज करेंगे ना, इसमें सेव कर अभी, अब वापस देखो रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश। जा उधर ब्राउजर पे जा, वापस बैक जा, बैक जा, बैक जा और बैक जा। अगेन कम फ्रॉम द मैनेजर, अगेन कम फ्रॉम द मैनेजर, व्हेनेवर मेक चेंजेस कम फ्रॉम द मैनेजर, या नाउ रीलोड योर फर्स्ट सर्वलेट, दिख रहा है क्या रीलोड बटन? माय फर्स्ट सर्वलेट के एंड में देख, स्टार्ट स्टॉप रीलोड, नीचे ना, नीचे लास्ट कॉलम में। हाँ तो रीलोड करने का उसको, तो इसमें बहुत सारे थोड़े हेडेक है। ठीक है, रीलोड हो गया, अब क्लिक कर माय फर्स्ट सर्वलेट पे, तो अब वो आ गया। अब तू 2 नंबर डालेगा, 10 20, जो सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो तुझे ऐड करके यहाँ रिस्पॉन्स भेज देगा। हाउ वॉज दैट? माशाल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट पे हो गया इसका तो। समझा अमन? पूरा फ्लो, पूरा आर्किटेक्चर। अब ये जो रिस्पॉन्स आया, ये प्लेन टेक्स्ट आया, सर मेरे को ये 30 को HTML का मार्कअप देना है। गो टू योर HTML, गो टू योर जावा। अपन ने क्या बोला हुआ है कि जो रिस्पॉन्स आता है ना, इट कैन कम इन प्लेन टेक्स्ट और इट कैन कम इन HTML ना, लाइन नंबर 7। अभी जो टेक्स्ट आया वो क्या आया? टेक्स्ट आया। लाइन नंबर 12 कॉपी कर, पेस्ट कर लाइन नंबर 13 पे, और इसको बोल्ड करना है तो बी टैग लगा दे, बी टैग इसके आगे पीछे। तो मैं HTML का कंटेंट में भी रिस्पॉन्स भेज सकता है, नहीं एक वेब पेज भी भेज सकता। अब देख अभी तेरा क्या चेंज हो गया, सोर्स कोड चेंज हो गया ना। तो इसको अमान बी को डबल कोट में डाल, क्योंकि ये प्रिंट लेना, प्रिंट लेना ना, तो बी को डबल कोट्स में डाल। हाँ बी को क्लोज कर डबल कोट्स में, फिर कॉन्कैट कर N3 को, N3 कॉन्कैट कर आगे पीछे। जावा है ना ये, हाँ समझा। अब ये सोर्स कोड चेंज हो गया, सेव करो वापस, फिर अभी वापस कंपाइल करना पड़ेगा ना देखो, वापस कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि जावा फाइल चेंज हो गई ना। ठीक है, अब वापस जा मैनेजर ऐप तक जा। तो सर्वलेट में तो JSP को उसका प्रो मैक्स क्यों बोलते हैं? कि JSP हेडेक से निकाल देता। वापस रिलोड कर, यहाँ तक आया हुई तो ठीक है अमान, यहाँ तक आया तो भी ठीक है, जस्ट रीलोड इट, या रीलोड कर, अभी क्लिक कर, अभी कुछ भी नंबर डाल, अब सबमिट कर। तो रिस्पॉन्स आपका देखो दोनों में आ सकता है, समझा क्या? प्लेन टेक्स्ट भी और HTML भी। अब इस सर्वलेट को JSP को प्रो मैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्वलेट में ये बहुत हेडेक है, चेंजेस किया तो पहले जाके फाइल कंपाइल करो, फिर रीलोड करो, और सारे वेरिएबल्स खुद बनाओ। गो टू द जावा फाइल। अब ये जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरा खुद का ऑब्जेक्ट है ना। अगर मैं इसको REQ1 दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? अगर मैं RES1 दूं, कोई प्रॉब्लम? ये जो आउट का ऑब्जेक्ट है लाइन नंबर 8 पे, मैं अगर बनाऊं PW, कोई प्रॉब्लम? तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी अपने को बनाना पड़ता। कोई भी चेंजेस हुआ तो उसको कंपाइल करो, जाके सर्वर को जाके रिफ्रेश करो, फिर जाके चेंजेस इफेक्ट लेते। तो ये सब लिमिटेशन किसमें थे? तो ये सब किसमें निकाल दिए वो लोग ने? इसके लिए JSP इसका प्रो मैक्स है। अरे किसको समझ में आया पूरा? देखो अमान ने पूरा हेड टू टो कर दिया, आज सेटअप भी कर दिया। आज डांडी मार लेते अपन तो इतना काम नहीं होता अपना। तो तुम लोग थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे अगर, तो बहुत आगे तक जाएंगे।